ओके, चलो शुरू करते हैं। ऑल आर रेडी? ओके, ऑडिबल। संजना, अनु, विनोय, योगेश। ओके, तो आज का हमारा सेशन है मेंस मेंस साइंस राइटिंग पे। ओके, निकालूंगा तो आपको भी दिखेगा। मेंस साइंस राइटिंग पे अभी सब लोग तो मुझे जानते होंगे। आप में से कितने लोग मुझे मतलब इसके पहले सुन चुके? जस्ट टाइप यस और नो, सो मुझे पता चलेगा कि इसके पहले कितने लोग सुन चुके, तो इस हिसाब से मुझे फिर आगे की बात करने के लिए। ओके, यस यस, नो नो, ओके, यस, नो। अच्छा, मतलब मेजोरिटी लोगों ने सुना, मेजोरिटी लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं। सो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं सुमित कैला जगताप, CSC 2019 ऑन इंडिया रैंक 507, करंटली इन IITS सर्विस। अभी मैं लखनऊ में हूँ, मेरा ट्रेनिंग चल रहा है। अभी ये घर में बैठा हूँ मैं, ऑफिस अपना रेसिडेंशियल, तो वहाँ से चल रहा है। Sir, can you please in English? Some people are not able to understand Hindi. Okay, I take sessions in both the language. Tejas, hi Tejas. I am. We are from same department, same college. And, nice to know about that. Uh, so I will be speaking in bilingual English as well as Hindi, so that our those who don't understand Hindi, they can know, understand from English, and those who don't understand English, for them I will talk in Hindi. Okay. So it will be not an issue. Okay, okay, okay. I will talk in both the languages. I will have interaction in both the languages. So no need to worry. So that was about me. I will not go into further details because otherwise it will be a waste of time. Uh, so if anybody want to know about me, I have. If anybody is having any doubt, I share my Telegram link. You can also follow me on Instagram. From there also you can contact me or from Facebook or Telegram. रवि, इनको भी टेलीग्राम का लिंक दे देना। मुझे पिछले बार भी काफी लोगों के मैसेज आए थे, सो मैंने उनको भी अच्छा वो PDF और सब शेयर कर दिए थे। श्योर सर, श्योर श्योर, आई विल शेयर। मेरा इस नंबर का दे देना जो जिसमें मैंने व्हाट्सएप करा था। ओके ओके, किसी को अगर नहीं समझा तो फिर उनसे बात कर ली जाएगी। आई विल टॉक विद देम। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चंस। इज इट फाइन? We will skip that introduction part because all know about me. At least कुछ तो रिसर्च किया होगा। ओके ओके ज्योति जी। So the I will take question from GS1 paper 1, general studies paper 1. Uh, we can do one thing. You tell me question that I will explain, or I will take a question and that I will explain. तो क्या करें आप? अगर आपको कुछ क्वेश्चन देना है तो आप टाइप कर दो. Till that time I will discuss one question. Okay, so from each GS we will discuss three questions. One from my side, like means previous year, one from your side. अगर आप में से किसी ने दो अच्छे क्वेश्चन डाले, if two people put up two good questions, then I will take that also. Okay. So today we will keep this question answer session at the end. Firstly, we will discuss about the question about main answer writing. So I am taking this with the example of question because ये ऐसे में आपको सिखा नहीं सकता कि आंसर कैसा लिखना है। ऑल नो द सबको पता है कि उसका फॉर्मेट कैसा चाहिए, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। ओके, सो फिर काफी दिक्कत आ जाती कि व्हाट टू बी राइट इन इंट्रोडक्शन, हाउ टू स्टार्ट एन इंट्रोडक्शन, व्हाट टू राइट इन बॉडी, हाउ टू कंक्लूड अ क्वेश्चन। सो आई कैन नॉट टेल यू, ऐसा नहीं बोल सकता, तो मुझे उसके लिए कुछ एग्जांपल लेना पड़ेगा। सो आई वुड हैव टू टेक अ एग्जांपल फॉर दैट. See, Ashutosh, this question of Persian literature reflect the spirit of the age. This question is very static. It is directly from your NCERT, new NCERT, 11th standard. All they have given this. So I don't think so. This will be a difficult question. This is not a challenging question. We will discuss some challenging one, means dynamic one. Static portion is whatever you have done रट्टो फाइव, you just have to copy paste it. You just have to written वहाँ पे जाके बस उसको लिखना है. So this is not a tough question. Give me some dynamic questions, so उससे आपको benefit हो सके. Okay.
सेफगार्डिंग द इंडियन आर्ट हेरिटेज इज नीड ऑफ मूवमेंट। भाई व्हाट इज, इसमें मुश्किल क्या है बताओ, सेफगार्डिंग क्यों करना पड़ा है? सबसे पहला क्या है, सबसे पहला व्हाट इज द इशू? These are the very easiest questions. Safeguarding the Indian art heritage is need of the moment. Safeguard करना है Indian art and heritage. So what how we can start? India has a very India has very Rushkesh, okay Rushkesh beta. India has a very rich culture of art and architecture, which can be seen from the Bhimbetka to recently built Sardar Vallabhbhai Patel statue, as well as it has some tribal arts in form of various dance, paintings, local theaters, all this. Okay, तो ये होगा इंट्रो. सो व्हाट इज नीड ऑफ द आर्किवे? तो सबसे पहले क्या आएगा? Influence is decreasing because of modernization, westernization. So we are moving from this our Indo-centric uh, culture to Western culture. Now we don't like to wear dhotis, lungis. We like to wear jeans, shorts. Okay, so it is in danger. Why we want to safeguard? It is in danger. दूसरा क्या है? पहले तो वेस्टर्नाइजेशन मॉडर्नाइजेशन हो गया, चेंजिंग लाइफस्टाइल हो गया. फोर्थ क्या है? सब एंगल डालना, इकोनॉमिक स्टेटस चेंज हो रहा है. दैट टाइम नीड्स कम थे, so according to that आर्ट बनता था प्रीवियसली, वॉल्स, उसके बाद पेन एंड पेपर. नाउ यू कैन ड्रॉ ड्राइंग ऑन टैबलेट. ओके, सो चेंज हो रहा है, तो उसको हमें उसको बचाने की जरूरत है. वाई बचाने की जरूरत है? सो दैट आवर कमिंग जनरेशन should come to know that what our forefathers, grandfathers, and previous generations used to live, their lifestyle, their culture, and what they can learn from that. Hey, I am audible na? Redmi, I think so. It is problem with you. To others, I am audible. Yes, sir. Your voice I is am. audible, sir. Okay, okay. So this I have covered three part. Okay, fourth is political. What is political? In Article 51A and in DPSP, it is specifically mentioned as a, uh, citizen of India, we have to preserve our rich heritage. And in DPSP, it is mentioned that state को क्या है? Protect. State should protect our art and architecture heritage. Okay. Then climate change angle. Because of climate change, Taj Mahal is getting yellowish layer, so its beauty is fading day by day. Okay. तो these are the reasons. These are the reasons तो हमें सेफगार्ड करने की जरूरत है. फिर उसमें नीचे स्कीम्स डाल दो गवर्नमेंट की, इतने सारे प्रसाद स्कीम, बहुत सारे स्कीम्स हैं उसको ये करने के लिए, तो उसको डाल दो. दीज आर द सिंपल क्वेश्चन यार. टेक सम क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी डायनामिक. ओके, अभी मैंने आंसर बताने के बाद आपको लगा होगा यार सर तो हमें भी पता था, हमारा दिमाग नहीं चला क्योंकि आपने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा नहीं था. अगर आप क्वेश्चन ठीक से पढ़ोगे तो फिर इतना टफ नहीं जाएगा. ओके, तो मैंने पूरा उसको डिस्कस किया है आपको. तो उसके बाद क्या था? इन इंडिया, इफ इंडिया वांट्स इट्स एस्पिरेशंस टू एक्शन, then it should adopt feminist foreign policy. भाई साहब ये इसका पॉल साइंस का क्वेश्चन है, डायरेक्टली पॉल साइंस क्वेश्चन. अगर इसको जीएस में लिखना तो काफी अलग एंगल से लिखना पड़ेगा. फिर यू हैव टू गिव सम एंशिएंट stories, like successful stories regarding foreign policy where female were main part, such as एक रुद्रम्मा देवी था. उनका जो बाकी के किंग्स थे आजू बाजू के, she was from Andhra region, Andhra Odisha, that region. तो उनका फॉरेन पॉलिसी एक अच्छा था. फिर मिडाइवल में तो ऐसा कोई खास एग्जांपल है नहीं. मॉडर्न में जो ऊपर का भाग है, मतलब नॉर्वे, उसके बाद स्वीडन, ये सारे जगह पे. उसके बाद अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन प्राइम, अपना न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर. तो इनको अब देखोगे तो उन्होंने क्राइसिस मैनेजमेंट काफी अच्छा किया है और फॉरेन रिलेशंस काफी अच्छे डेवलप किए. लेकिन फिर क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई फॉरेन पॉलिसी, फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसी? क्योंकि फेमिनिस्ट क्या मतलब, फीमेल्स क्या होते हैं? पीस लविंग, काइंड, सॉफ्ट हार्टेड, मतलब ये सारी क्वालिटीज होती हैं उनकी.
तो एक कंट्री की भी फॉरेन पॉलिसी ऐसी रहेगी तो वार नहीं होगे, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होगे, जो अभी जो हालात चल रहे हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में वैसे हालात नहीं होंगे, मतलब पीसफुल सोसाइटी रहेगी, जो भी एक यूएन का भी एम है। तो इसलिए हमें फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसी चाहिए। तो पहले ये तो इंट्रोडक्शन में लिख दिया, फिर मैंने जो एग्जांपल्स बोले बॉडी में लिख दी, फिर इंडिया को क्यों चाहिए? हालांकि इंडिया तो पीस लिविंग नेशन है ना, और क्या पीसफुल मीन्स से हमें ऊपर चढ़ना है ना, वी वांट टू बिकम अ ग्लोबल लीडर बाय पीसफुल मीन्स, so why we need a foreign female foreign policy? So world global world order is in state of flux, it is in state of flux. So हमें ऐसा, अगर फीमेल फेस रहेगा so it will help us. So यही बातें घुमा फिरा के वही बातें बातें रिपीट रिपीट इधर उधर से उठा के लिखनी। ओके, 250 वर्ड्स 150 वर्ड्स काफी हो गए, मैंने जितना बोला उसमें तो एक पेज लिखा जाएगा, दो तो 5 पेज लिख देंगे। ओके, has the formation of linguistic states strengthened the cause of Indian unity? See, in such questions, you will have to give both the sides. क्योंकि क्या हैज मतलब दिया है क्या, हुआ है क्या? सो फर्स्ट गिव पॉजिटिव साइड्स देन गिव नेगेटिव साइड्स। तो यू कैन गिव नहीं हुआ है एग्जांपल्स, व्हाट आर द एग्जांपल्स? उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, नो डेवलपमेंट। ओके, अभी इंडियन इंडियन यूनिटी की बात हुई है, तो क्वेश्चन ही गलत है, इंडियन यूनिटी नहीं चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया? मुझे एक बार सेंड करना तो, क्योंकि मुझे नहीं लगता जीएस में यूनिटी वर्ड यूज करेंगे कभी वो कुछ अलग वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि इंडियन यूनिटी ऑलरेडी वो तो है, मतलब स्टेट्स का उसका, हमारा स्टेट्स अलग, फेडरलिज्म अलग लेवल पे बना है। कमिंग कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर, आपको यू माइट बी नोइंग अबाउट इट। So it is a holding together, so it's a unity. That coming together type of federation needs to establish unity like American federation. So this question has to be changed. Okay sir, how to deal with those questions in which we know little about and no factual data in coming our mind? Okay, give example, I will tell you. Chetan, give, put some example in chat box. Role of technology in combating coronavirus various। अरे यार ये सब टेक्नोलॉजी तो है, मतलब मास्क इट इज अ टेक्नोलॉजी, योर वैक्सीन आर टेक्नोलॉजी। अभी कोविन कोविन चल रहा है, वी हैव टू रजिस्टर फॉर वैक्सीनेशन, टेक्नोलॉजी। आरटीपीसीआर कैसा है, टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग इज टेक्नोलॉजी। लॉकडाउन लोगों को पता चल रहा है, पुराने जमाने में अगर होता लॉकडाउन कैसा कन्वे करता था, वो ढिंडोरा पिटाना पड़ता था। नाउ ऑन मोबाइल मैसेज यू कैन से लॉकडाउन इज डिक्लेयर्ड। अवेयरनेस, how इतना फास्ट अवेयरनेस हुआ, the mortality rate is even not 1% of the world population. In the Spanish flu it was 10% of the world population in 1920. This is because of role of technology. Don't give put some hard questions which will be helpful to you. Start with structure of answer of any question. I told you na, intro, body, conclusion. But here also the scheme is that intro, body, conclusion change according to the statement of the question. It is not a definite criteria or set of rules that that same structure will apply everywhere. In some questions you will have to start with different kinds. In some questions you will have to give facts. In some questions some story, logic. In some questions opening statement might be a quote, anything. There is no set of rules. In body also you can do diagrams, different type of diagrams, different kind of committee reports, supreme court judgments, there are many things. In conclusion also you can be forward looking, or you can conclude with government scheme, or you can conclude with a story which you have started in the earlier introduction, or the another quote which you have not given in the your introduction. So there is no set of rules. Okay, so past year question asked in 2000. Okay, then write complete question. Jyoti ji, communic role of technology start, and how can we make answer on the spot? It comes with the practice. See, I am reading your answers, questions, and giving you answers from here only. And they are very in simple language. यही लगता है वहाँ पे. And you can score good. My score was very good in GS, so you can score good in GS also. Just be have आपका language, keep your language very simple. That it
It should be understandable, and your point should be very strong. They should be touch, and they should be to the answer should be to the point. Whatever has been asked, उतना ही बताना है. Should not do यहाँ वहाँ घूमना नहीं here and there. Okay. The question is different, something different, and you are writing something different. It should be not like that. It should be your answer should be what has been asked in the question. Okay, sir, are we losing our local identity to global identity? Discuss. Yes, again I have discussed. We are shifting from dhoti to jeans. Food habits from roti, sabji to pizza, burger. This is our local identity, man. Our marriage culture is changing. Now we want big fat Indian marriages. It was not a culture of India. Uh, there is a craze for America, going to America. If somebody is in foreign or if somebody is earning, working in MNC, we feel proud about it. Our family system is breaking. We are getting into nuclear family. Our divorce rate has been increased. We are merging into global identity. What is global identity? Currently, global identity is considered as the Western identity. Now it is shifting toward the East. That is a different story, but this is the global identity. Yes, we are losing it. This is what discuss means, that we are discussing how it is losing. And second point, no, we are not losing it. How? We have took yoga from India to world. Our movies, they are shown all over the world. Amir Khan has fan base in China, Shah Rukh Khan in British countries. Hmm? Our South, that who is this cricketer? David Warner is dancing on South Indian movie songs. You can write all these things. So there is both, it has both the face. Yes, it is, we are losing our local identity, and no, we are not losing. Instead of losing, we are strengthening it by use of all these means, by use of communication, by use of technology. We are selling our products all over the world. There is a huge market for Indian type of Indo Western नया concept आया in dressing. Okay, so यही लिखना है इसमें. Okay, this is society part question. I told you how to make answers on the spot. You can see from me. It is because of practice. मैंने practice की, so I can tell you easily. Communalism arises either due to power struggle or relative deprivation. Argue by giving suitable illustrative examples. Okay, this is good question. ये तो GS का question. अभी concept समझो. What is communalism? What is communalism? Communalism is a use of religion for the political gain. Okay, means whenever we are bringing politics in religion, okay, तो communalism हो जाता है. So यार क्या communalism हो जाता है. So it is due to power struggle. How power struggle? So you can start with the 1857. After the 1857, so Britishers they used to use stick and carrot policy. So sometimes they said, मतलब उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट किया that the 1857 war was happened because of some what, because of some, I am asking question. अब पता ना वहां से ज्यादा कम्युनिज्म फैला हिंदू मुस्लिम के बीच में. सो डीपन होते गया. तो ये क्या था, ये पावर स्ट्रगल के वजह से था. ओके, दूसरा एग्जांपल क्या है कम्युनलिज्म का? इजराइल पैलेस्टाइन रिसेंट वन, पावर स्ट्रगल. ओके, इंडिया पाकिस्तान क्यों बना? कम्युनलिज्म 1947 राइट्स, पावर स्ट्रगल. डोंट, कोई लीडर का नाम लेके मत लिखो, ऐसा बड़े बड़े बातें करो. देन द सेकंड पार्ट, रिलेटिव डिप्रिवेशन. तो इंडियंस आफ्टर 1857 फिर इंडियंस को गवर्नमेंट ने कुछ इंडियंस को पास में करना चालू किया, दोज हु हेल्प देम इन वॉर. सो फिर मुस्लिम लीडर्स को क्या लगा कि हमारा डिप्रिवेशन हो रहा है. ओके, अभी भी वोट बैंक पॉलिटिक्स चलता है जो इंडिया में काफी तरीके से दिखाई देता है कि रिलीजन के नाम पे वोट बटोरे जाते हैं. रिसेंट वेस्ट बंगाल इलेक्शंस, राइज ऑफ हिंदुइज्म, राइज ऑफ हिंदुत्व पार्टीज, राइज ऑफ राइटिस्ट, ये सारी चीजें लिखो ना. काफी काफी इसमें तो काफी मटेरियल लिखने के लिए. सो इट हैज बोथ द साइड्स.
And in conclusion, you can write that India peace loving nation, Ganga Jamni Tehzeeb, all these things you have to write. भले ही वो होगा, लेकिन इट इज नॉट एट दैट स्किल कि हम आपस में वार के लिए गए. वी आर नॉट एट द वार विथ आवर सेल्फ. ओके. We are living, we live peacefully. We have peaceful coexistence with all the communities. दुनिया के सारे मेजर रिलीजन्स तो इंडिया में, उनमें से 4 का तो उगम इंडिया में हुआ है. ओके. सो मैं कहाँ पे था, कम्युनिज्म हो गया. व्हाट इज डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज वी नीड टू टेक अ स्टैंड एंड ट्राई टू जस्टिफाई. अरे कहाँ स्टैंड लेने की क्या जरूरत है? ये मैंने तो पूरा पूजा पूजा इज देयर. This question is not about taking stand. This question is about the discussion. What do you see? कि आपने क्या देखा? You have to write both the sides. मतलब how it is because of power struggle and how it is because of relative deprivation. Relative deprivation is poverty. Power मतलब वही poverty, economical deprivation. या फिर relative deprivation मतलब क्या? One एक को ज्यादा मिल रहा है, एक को कम मिल रहा है. And the other one is thinking that I am deprived of the resources which another is getting. Okay. And power struggle is power comes the word with politics. Okay. So you have to write both the things. अभी समझ में आया पूजा जी? पूजा कहाँ पे? पूजा पूजा ठाकुर. Okay sir. Okay पूजा. Past year question asking. Okay. Do you agree that regionalism in India appears? अरे यार put some different question ना. How much regionalism? 3-4 questions हो गए. Cultural ascertainism उसमें वही डालना. Take some economics question, internal security questions. उसके बाद करंट क्वेश्चन पूछो, इंटरनेशनल रिलेशन पूछो. सेम स्ट्रक्चर चेंज करते जाओ यार. मतलब क्या है कि वही फिर आपसे ज्यादा कुछ, आपको ज्यादा कुछ दिखेगा नहीं उसमें, सीखने को नहीं मिलेगा. 1-1.5 घंटा भी चला जाएगा आपका. किसका मोबाइल नंबर आया? हु इज दिस? ओके. DRDO 2 DG फॉर कोविड. नॉट मच इज नोन अबाउट इट. आस्क अबाउट इट. वो नहीं पूछेंगे कोविड के बारे में, भी नहीं पूछेंगे. इट इज स्टिल टॉपिक. उसके कुछ पढ़ो भी मत. इट विल बी वेरी जनरल क्वेश्चंस. आई डोंट थिंक सो एक क्वेश्चन से ज्यादा रहेगा. यू आर एम्पल ऑफ नॉलेज फॉर दिस. Compare the fundamental rights of India and US. We know little bit about how to write it in 250 words. अरे सी पूरा 360 डिग्री कवर करने का. इंडिया यूएस फंडामेंटल राइट तो कंसेप्ट इंडिया में यूएस में कहाँ से है, उसका चालू करो. इंट्रोडक्शन, बिल ऑफ राइट्स इन यूएस, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फंडामेंटल राइट्स, स्लेवरी. ओके. इंडिया में 1928 29 लाहौर डिक्लेरेशन. लाहौर और कराची डिक्लेरेशन. कराची डिक्लेरेशन. 1930 नेहरू रिपोर्ट, पूर्ण स्वराज होत. ओके. वहां से आया फंडामेंटल राइट्स. सो सम पार्ट वाज देयर इन 1935 एक्ट. सब्सिक्वेंटली प्रो आपका इन प्रो गया. इन बॉडी व्हाट वी कैन राइट. इंडिया में कितने फंडामेंटल राइट्स? 5 या 6. यूएसए के कितने नहीं पता. तो इंडिया के लिख देने के सर, ऐसा लिखने का कि देयर आर सम कॉमन फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया एंड यूएसए एज एफआर हैज बीन बोरोड फ्रॉम यूएसए. फंडामेंटल राइट्स यूएसए से बोरो किए शायद हमने, वही लिखने का. फिर उनका जस्टिफिकेशन यूएसए के डबल सिटीजनशिप है, इसलिए वो दोनों जगह फंडामेंटल राइट्स यूज करते हैं, स्टेट में भी और सेंटर में भी. हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप है, इसलिए हम बस एक ही क्लेम कर सकते हैं. हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड ज्यूडिशरी आर्टिकल 32 है. अगर हमारा फंडामेंटल राइट इंफ्रिंज हुआ तो हम सीधा रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं डायरेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट. ओके. वैसे यूएसए में डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाते. सुप्रीम कोर्ट उनके फेडरल इश्यूज संभालता है. उनके जो स्टेट कोर्ट से, फेडरल कोर्ट से वहाँ पे जाते, अपने स्टेट कोर्ट से वहाँ पे जाते हैं पर्टिकुलर स्टेट्स के. ओके. फिर उसके बाद क्या है, एक हो गया. दूसरा क्या है, इंडियंस में क्या है, इंडियंस सम फॉरेनर्स को भी फंडामेंटल राइट्स है. यूएसए में नहीं. यूएसए का पूरा सिस्टम अलग है. मतलब वहाँ पे भी, मतलब जिस तरह से इंडिया में है उस टाइप के नहीं. यहाँ पे राइट टू एजुकेशन फॉरेनर्स को भी.
ओके, सो ये ऐसा उसको बैलेंस करते करते चलने का। 250 वर्ड्स 200 वर्ड में लिख दो, नहीं जमता होगा। 150 वर्ड में लिख दो, कुछ भी मत लिखो, लेकिन कुछ भी फेंको मत कि यूएसए में राइट टू प्राइवेसी, फेसबुक के ऊपर केस चला, इंडिया में राइट टू प्राइवेसी, पुट्टू स्वामी केस में आ गया, चेंजिंग डायनामिक्स फंडामेंटल राइट्स, ऐसे कुछ लिखो उससे रिलेटेड। लेकिन नहीं आता तो कुछ भी मत लिखो उसमें। हाँ, लिंग्विस्टिक स्ट्रेस वाला कहाँ पे, ज्योति का क्वेश्चन कहाँ पे का है? सर कैन यू टेल हाउ टू एड्रेस वेरियस कीवर्ड्स लाइक कमेंट, क्रिटिकली कमेंट, डिस्कस। सी कमेंट मतलब उस पर चर्चा करो, क्रिटिकली कमेंट मतलब दोनों साइड से चर्चा करो, और डिस्कस मतलब फिर चर्चा करो। अभी मेरा अगर सजेशन सुनोगे तो हर क्वेश्चन में दोनों साइड डालने का, लेकिन क्वेश्चन के ऊपर रखने देने का। अभी ये मैंने इंडिया यूएस क्वेश्चन बोला, इसमें दोनों साइड तो नहीं बोली, इसमें नेगेटिव साइड क्या ही लिखूंगा। लेकिन ऊपर मैंने कल्चर का एक क्वेश्चन बोला, उसमें दोनों साइड लिखी, उसमें लिखा भी नहीं था कुछ, उसमें डिस्कस लिखा था। ओके, सो एक क्वेश्चन पे रखो, ये प्रैक्टिस से आ जाएगा। और एक कीवर्ड के यार काफी यूट्यूब पे वीडियो बने, काफी, और ये प्रैक्टिस से आ जाएगा आपको, डोंट वरी। प्रैक्टिस से सब ये सारी चीजें, कमेंट, क्रिटिकली एनालाइज, डिस्कस क्या है, सारा आ जाएगा। एक वो होता कुछ नहीं, बस नाम के लिए वर्ड से लिखना सारा है। जो क्वेश्चन में पूछा है वो लिखना है, कमेंट विमेंट पे नहीं, वर्ड में। क्वेश्चन क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट होता है, ये वर्ड्स नहीं, ये तो पहला वो आपको हटाने के लिए होता है। तनिष यारा, यू हैव रिटन वेरी गुड, वेरी लॉन्ग स्टेटमेंट। आई हैव स्टडीड ज्योग्राफी, लोकेशन मैपिंग जो पर इसमें आता है, बट फिजिकल ज्यादा नहीं हो for present level of preparation, what kind of extra things यार, दिस इज मेन साइंस राइटिंग, प्लीज स्टिक टू मेंस। आप मुझे ये सारी चीजें टेलीग्राम पे पूछ लेना। सर, choose tough questions according to and explain if you leave it on us, then difficulty will differ person to person. Okay, Shom, caste system is assuming, no, I will not Excuse discuss me, this sir. question. हाँ, सर सॉरी टू इंटरप्ट। सर मुझे मेंस में ही पूछना था, जैसे क्वेश्चन भी आया ना, डिफाइन मेंटल ल्यूम एंड द प्रेजेंट इम्प्लीकेशंस, ऐसे उसका कुछ क्वेश्चन भी आया था, हाँ, एक्सप्लेन द हाँ, तो रूरल प्लेट टेक्टोनिक्स। तो मतलब कभी कभार फिजिकल का एक क्वेश्चन वो डाल देते हैं जहां पर मतलब आपको इतना बेसिक, मुझे इतना आता है कि बस इरोजन फीचर्स कौन से होते हैं, डिपोजिशन कौन से होते हैं, लेकिन कभी कभार वो ऐसे पूछ लेते हैं फिजिकल में क्वेश्चंस, तो तब उनको कैसे हैंडल करना चाहिए। और उसके लिए मतलब ज्यादा डीप में नहीं जाना है, बट स्टिल जो थोड़ा मिनिमम प्रिपरेशन भी है, गिवन द देखो, टाइम एंड मैं। तो जो मेंटल प्लूम वाला क्वेश्चन था उसमें मैं बात करता हूँ, क्योंकि अभी चलो मेंटल प्लूम और पिछले बार क्या आया था, वो क्रायोस्फीयर कुछ आया था। ओके, अभी मेंटल प्लूम की बात करते हैं। मेंटल प्लूम तो पता ही है क्या होता है, चलो मेंटल प्लूम कहीं लिखा है नहीं, मेंटल तो पता है। प्लूम मतलब क्या, बाहर निकलना, बोलते ना हम, प्लूम हुआ। हाँ, तो उससे तो इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है यार। और फिर क्रायोस्फीयर हो गया, क्रायोस्फीयर क्या है, क्रायो मतलब क्या, सर्टन डिग्री के नीचे, सही बात है ना। हाँ हम्म? जी सर। अगर आपके एक कंसेप्ट क्लियर है, फिर तो दिक्कत ही नहीं आएगी। तो क्वेश्चन क्या था, अगर क्रायोस्फीयर जैसा डिक्रीज हो रहा है वैसा एनवायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ रहा है, वही ना, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वही ना, तो उससे क्या इफेक्ट हो गए। तो नीचे का जो कोल बेड, कोल बेस्ड मिथेन बेड है नीचे की, वो बाहर इरप्ट होना चालू हो गई, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, गैसेस बढ़ेगी, वाटर स्कैरसिटी होगी। ये जो मैंग्रूव्स है सारे प्रोडक्टिव लैंड से नॉर्थ में शिफ्ट हो जाएगी, पॉपुलेशन फिलहाल तो बीच में रह रही है। यही तो चीजें लिखनी है, ये तो ऑब्जर्वेशन से आती है ना। आप जितना पढ़ रहे देखो, जो ज्योग्राफी के जो मेंस के क्वेश्चन आते हैं ना, वो आप एक कंसेप्ट मालूम होने से नहीं सॉल्व कर सकते, या फिर कोई भी जीएस का आंसर आप बस एक कंसेप्ट मालूम मालूम होने से नहीं सॉल्व कर सकते, उसके लिए 360 डिग्री सोचना पड़ेगा, अलग अलग एंगल में। हाँ, और कौन सा क्वेश्चन था आपका ज्योग्राफी का? न्यू कंटेंट मत करो, पुराना कंटेंट ही ज्यादा करो। 11th का एनसीईआरटी, फिजिकल एनसीईआरटी जितनी बार पढ़ सको उतनी बार पढ़ो, इंडियन एनसीईआरटी जितनी बार पढ़ सके उतनी बार पढ़ो, 12th का एनसीईआरटी जितनी बार पढ़ सके उतनी बार पढ़ो। आपको जीसी लियोंग पढ़ने की भी जरूरत नहीं, ना माजिद हुसैन पढ़ने की जरूरत है, या फिर ना कोई किसी क्लास के ज्योग्राफी के नोट्स, या फिर उसके सर के ज्योग्राफी के नोट्स, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं। बस यही करो जो हाथ में, उसको अगर ठीक से करोगे तो आपको सब याद रहेगा, कंसेप्ट याद रहेगा, फिर आप रिप्रोड्यूस कर सकोगे, फिर इंटरलिंक कर सकोगे। मेन आंसर राइटिंग इज ऑल अबाउट इंटरलिंकिंग। अगर आप ये नई चीजें कर पाओगे, इफ यू आर नॉट एबल टू डू दिस, इट विल बिकम डिफिकल्ट टू राइट डाउन एन आंसर। अगर इफ इंस्टेड ऑफ रीडिंग 100 बुक 10 बुक्स, जस्ट रीड वन बुक 10 times, you will get better result.
ओके, सो ओके सर। उस पर ज्यादा ध्यान दो. डोंट इंक्रीज योर रिसोर्सेज, जस्ट इंक्रीज योर रीडिंग्स. मैंने ये सारी चीजें का व्हाट फ्रॉम वेयर आई एम सेइंग यू ऑल दिस थिंग, दीज आर फ्रॉम एनसीईआरटीज, फ्रॉम जनरल स्टैटिक बुक्स. I never referred in different books. I just studied for 1.5 year, just 1.5 year. बस टेक्निकली पढ़ो, प्लान करके पढ़ो, कुछ भी मत पढ़ते बैठो. सर चूज ओके ओके कास्ट सिस्टम उसका आई विल नॉट डिस्कस दैट. सो व्हाट एक्सटेंट अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर. अरे यार ज्योति जी यार, दिस क्वेश्चन तो क्या ही है. प्रेजेंट डे में क्या है, वो वहाँ पे ग्रेड बात था. अभी हम जाते वो गंगा स्नान, हर मंदिर में ऐसा कुंड होता है स्नान का, जो ऐसा रोड्स है हमारे, क्रॉसिंग ईच अदर. गटर सिस्टम अभी तब भी थी. कॉइन्स तब यूज नहीं होते, सील्स तब यूज होती थी, सील्स अभी भी यूज होती. टाउन प्लानिंग में, टाउन प्लानिंग की बात चल रही है ना, वो लगा दे ना मोर घर पे, घर बंद करने के बाद, वही तो है सारा. इस वेट सिस्टम में काफी चीजें यार. टू स्टोरेज बंगलोज, स्पेसिंग बिटवीन द बंगलोज, वो पिट होल्स, ड्रेनेज सिस्टम, रोड्स, सारी चीजें तो वही सेम ही तो है. एग्जाम्पल दे दो वहां से यहाँ का. मैं नासिक में था, त्र्यंबकेश्वर का एग्जाम्पल, उसमें पानी का कुंड है, वहां पे ग्रेड बात था. अभी भी ग्रेनरीज है हर सिटी में, एफसीआई के गोडाउन से तब भी थे. सो व्हाट इज डिफिकल्ट इन दिस क्वेश्चन. इसलिए तो पूछ रहा हूँ कि आप जो क्वेश्चन ले रहे हैं ना, उन पर सोच नहीं रहे. अभी जो मैंने बातें बोली समझ में आई क्या आपको, आईवीसी में ज्योति जी कहाँ पे, ज्योति, हेलो, ज्योति है क्या? ओके. देखो कितनी इजी बातें हैं, तो आप क्वेश्चन को नहीं समझ रही है, आप उस पर सोच विचार नहीं करे. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, टू व्हाट एक्सटेंट हैज द, कहाँ गया यार वो, टू व्हाट एक्सटेंट हैज द अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर. अर्बन प्लानिंग और कल्चर है. अभी अर्बन प्लानिंग की बात हो गई, कल्चर क्या है, वो सिल्क की बात की, कपड़े, वो यहाँ पे क्या है, पशुपतिनाथ का पूजा होता था, अभी भी टेम्पल है पशुपतिनाथ का. पूजा होती बहुत सारे जगह पे. वो फीमेल गॉडेस को पूछते थे, फीमेल गॉडेस तो अभी भी कल्चर है. हाँ, आगे क्या है, ऑफ द आईवीसी प्रोवाइडेड इनपुट्स टू द प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन, है क्या नहीं. नो, नो टेबल फॉर्मेट. दिस क्वेश्चन डिमांड्स पॉइंट वाइज आंसर्स, पॉइंट वाइजली. टेबल फॉर्मेट अवॉइड करने का जहाँ जरूरत नहीं, वहां पे डायरेक्टली कंपैरिजन बोला है कि फ्रेंच एंड इंडियन सेक्युलरिज्म कंपेयर करो, वहां पे टेबल फॉर्मेट डालो. ओके, हर जगह मत डालो. डिस्कस एक्सामाइन क्रिटिकल. यार भाई साहब, इसके देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस ऑन द यूट्यूब, प्लीज लुक एट दिस. These are nothing but debating words. You just focus on the question. ये ऊपर का क्वेश्चन, टू व्हाट एक्सटेंट, द द फोकस स्टेटमेंट इज टू व्हाट एक्सटेंट. अगर इसके नीचे आफ्टर अर्बनाइजेशन कमेंट में भी लिखा होता, व्हाट डिफरेंस इट विल मेक. यू हैव टू राइट टू व्हाट एक्सटेंट, यू डोंट हैव टू राइट डिस्कस. ओके.